Hey students, welcome to my channel Big Education. If you're new to my channel, then please subscribe it and don't forget to hit the bell icon. So let's start. Our chapter 5th Education. सो प्रीवियस चैप्टर में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एजुकेशन. सो आप सबको पता है कि इंडिया में ही नहीं हर जगह आजकल एजुकेशन की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है एंड सबको लिटरेट रहना ही चाहिए बिकॉज आजकल कंपटीशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है. सो हम देखते हैं हमारे चैप्टर्स में क्या दिया है. In this chapter, we shall review the main stages and scheme in the development of the educational system in India. We shall take into consideration primary, secondary as well as higher education and beside research institution in some respective representative areas. This will give us an idea of the educational system throughout the country. So इसमें हम 3 एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं जिसका कंट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है. द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया the first census of independent India in 1951 revealed the extreme complexity and intractability of the educational issues in the country. In the first census, the लिटरेसी लेवल वॉज 17%. इट रोज एज शोन बिलो. सो यहाँ पे सेंसस दिया है मीन्स ईयर दिया है एंड लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या थी वो कितनी थी वो इसमें दिया है. सो 1971 में कितने थे 34% एंड 1981 में 43 हुए, 1991 में 52% हुए एंड 2001 में 64% हुए एंड अभी क्या चल रहा है 2021. तो अभी का पता नहीं, अभी जब जनगणना होगी देन वी विल गेट टू नो. इम्प्रूविंग दिस परसेंटेज वॉज अ सीरियस चैलेंज फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया. Several remedial schemes were put in place to deal with it. सो हर 10-10 साल में परसेंटेजेस बढ़ते हैं, बढ़ रहे हैं. जैसे जैसे इंडिया खुद की ग्रोथ कर रही है वैसे वैसे इंडिया का लिटरेसी रेट भी हाई हो रहा है. सो यहाँ पे फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइमरी एजुकेशन. Primary education refers to the schooling given to children in the 9 to 14 years group. Primary education कितने से कितने साल के बच्चों के लिए होता है 9 to 14 years के लिए. In 1988 the central government started a scheme for the spread of primary education and to improve educational standards. So central government ने प्राइमरी एजुकेशन को स्प्रेड किया ऑल ओवर इंडिया में एंड जिससे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो. इट इज़ नोन एज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. What it is known as? It is known as Operation Blackboard. The government made funds available to help improve the standards of the school and to fulfill minimum educational needs such as at least 2 proper classroom toilets, one of the 2 teachers to be female, a blackboard maps, laboratory apparatus, a small library, a playground, group equipment etc. सो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज भी की है एंड उन्होंने सोचा कि अगर ये सारे जो थिंग्स बताए गए हैं इसमें वो सब रहेंगे तो एक स्कूल का नीड एक पर्टिकुलर चाइल्ड का नीड भी पूरा होगा. दिस स्कीम हेल्प द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम टू गेन सम मोन्यूमेंट एंड ये थीम ने प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को एक न्यू पहचान दी. In 1994, this scheme was expanded and provision was made for one additional classroom for appointing one more teacher in school with an enrollment of more than 100 students with priority given to girls schools. सो इस स्कीम को और एक्सपांड किया और आगे आगे बढ़ाया गया एंड उसके बाद क्या किया कि अलग अलग टीचर्स को अलग अलग क्लासरूम के लिए अपॉइंट किया गया. ओके. Schools with majority of scheduled caste and tribes student and school in rural areas and rural areas में भी जो
शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, उनके लिए भी रूरल एरियाज में स्कूल को डेवलप किया गया। It was also made binding upon the state government to appoint female teachers to 50% of the post in school, and उन्होंने फीमेल टीचर्स को भी अपॉइंट किया बिकॉज गर्ल्स के लिए फीमेल्स टीचर को रहना बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए उन्होंने गर्ल्स का सोच के फीमेल टीचर्स को भी अपॉइंट किया। Again in 1994, the District Primary Education Program DPEP was started with the objective of universalization of primary education. It was implemented in 7 states including Maharashtra, and ये प्राइमरी एजुकेशन का प्रोग्राम 7 स्टेट्स को इंक्लूड करके गए 7 स्टेट्स को मिला के किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र भी इन्वॉल्व था। The plan and investigate 100% advance in primary school, arresting student drop out education for girls and for the physical handicapped. सो गर्ल्स के लिए एंड हैंडीकैप जो बच्चे रहते हैं उनके लिए एजुकेशन को मस्ट किया गया था। It included programs such as research on the evolution of primary education, alternative education, creating societal awareness, etc. The midday meal scheme was started in 1995 to provide proper nourishment for students. And midday meal को भी स्टार्ट किया गया था, जो बच्चे को लंच ब्रेक में स्कूल से ही टिफ़िन लंच मिलता है, उसे मिड डे मील बोलते हैं। सो वो भी स्टार्ट किया था ताकि बच्चे नरिशमेंट उनको प्रॉपर मिल सके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी एजुकेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद डिसाइडेड टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एजुकेशन के सिस्टम में थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेट अप फॉर दिस पर्पस। दिस कमीशन रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। अकॉर्डिंगली इन 1952-1953 द मुरलीधर कमीशन वॉज अपॉइंटेड, बट सेकेंडरी एजुकेशन का जो सेपरेट करने का विचार था वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हुआ, बिकॉज उस टाइम पे नेक्स्ट मिनिस्टर अपॉइंट करा गया था इन 1952 to 1953 में। एट दैट टाइम द पैटर्न of education consisted of 11+4 year for the first degree और 11+1+3 years। सो तब का पैटर्न कैसा था ना कि 11th होने के बाद बोर्ड होगा एंड उसके बाद 4 ईयर का कंप्लीट फाइनल डिग्री होने के बाद देन अगेन बोर्ड होगा, या फिर अलग सिस्टम था 11th होने के बाद बोर्ड एंड देन फर्स्ट ईयर होने के बाद अगेन बोर्ड एंड देन 3 ईयर्स के बाद अगेन बोर्ड। द वर्क ऑफ द कमीशन। द कमीशन स्टडीड सेकेंडरी एजुकेशन। कमीशन ने क्या किया, सेकेंडरी एजुकेशन जो एजुकेशन मिनिस्टर कमीशन थे उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को स्टडी किया। द नेचर ऑफ द सर्क्यूलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड मेड सर्टन recommendations. This commission purposed the concept of higher secondary education. However, it was found difficult to implement it at all over the country. The Kothari Commission. In 1964, a commission was appointed under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari. Dr. J.P. Nayak made valuable contribution to the work of this commission. So, secondary education के लिए दूसरे कमीशन आई 1964 में, जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को चेंज करने का सोचा। दिस कमीशन आल्सो रिकमेंडेड द 10+2+3 पैटर्न फॉर सेकेंडरी। उन्होंने भी क्या किया, 10+2+3 का किया, मीन्स 10th के बाद बोर्ड, सेकेंड ईयर होने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर होने के बाद अगेन बोर्ड एंड देन 3 साल की स्टडी होने के बाद अगेन बोर्ड।
higher secondary education and university education. This system was implemented from 1972 and ये system कब से implement हो गया, कब से चालू हो गया, 1972 से. The commission also suggests a uniform national system of education. The inclusion of the mother tongue Hindi and English in education as well as continuing education, adult education, education by correspondence and open university to make education trickle down to the lowest range of सोसाइटी. एंड एजुकेशन के सिस्टम में हिंदी एंड इंग्लिश मस्ट लैंग्वेजेस होंगे जिसमें स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन मिलना चाहिए. फिर यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ रहा है तो उनको उस टाइप की एजुकेशन मिलना चाहिए. मीन्स जो जिस फैकल्टी में है उसको उस टाइप की एजुकेशन परफेक्टली मिलनी चाहिए. ये रूल किसने, कोठारी कमीशन ने बनाया था. It also recommended increased provision in the government budgets for expenditure or education of neglected sections like the scheduled caste and tribe. And ये system SC and ST वालों के लिए भी था. Maharashtra government adopted the 10+2+3 pattern in 1972 and conducted the first state 10th बोर्ड एग्ज़ाम इन 1975. बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसको अपनाया. मीन्स 10th के बाद बोर्ड, देन 12th के बाद बोर्ड एंड देन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर. सो फर्स्ट बोर्ड 10th का कब हुआ था महाराष्ट्र में, 1975 में. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. हियर सम ऑब्जेक्टिव्स हैड गिवन. लेट्स सी. Modernization of education, social and national integration, natural nature of social, moral, spiritual value, education and productivity, securing and strengthening of democracy. Higher education. Education and the post-independence era. After independence in 1948, the central government appointed the University Education Commission, whose chairman was Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. So, after independence के बाद 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया एंड उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. इट्स फंक्शन इंक्लूडेड फाइनेंशियल ग्रांट द स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड देयर coordination. Method of functioning. The commission accepted the 5-year plan method. It began to sanction and disburse grant to the university to behalf of the government. The commission undertakes planning of university education, cooperatives, SLIB, giving primacy to national need through education and the planning and implementation of various schemes of higher education. It has done valuable work in establishing University Development Council Center for Advanced Studies for Postgraduate Education, establishing new university. After the advent of television in India, it initiated the countrywide classroom program with the telecast by Doordarshan on behalf of the commission. सो जो हमारे उस टाइम पे कमीशन थे, एजुकेशन कमीशन मिनिस्टर, उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि जिस स्टैंडर्ड्स में बच्चे होंगे उनको उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ाई करवाई जानी चाहिए. एंड उसके बाद टेलीविज़न का भी इन्वेंशन हो गया. देन उन लोग जो भी रहता था कंट्री वाइड क्लासरूम वो टेलीकास्ट करवाते थे. कौन से चैनल पे, दूरदर्शन चैनल पे. National Council of Education Research and Training, NCERT. This body was established in Delhi on the 1st of September 1961. इसका मेन ऑफिस कहाँ पे था, दिल्ली में. एंड वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1st September 1961 में. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट of a comprehensive policy and in implementing educational scheme. इनका मेन मोटिव क्या था कि स्कूल से रिलेटेड जो भी मैटर्स रहेगा वो हम सॉल्व करके आपको देंगे. एंड स्कूल्स में अलग अलग अगर डिफरेंट स्कीम्स बतानी है, बच्चों के लिए डिफरेंट स्कीम आने चाहिए,
तो वो भी हम ही डिसाइड करके आपको बताएंगे। The NCERT was given the responsibility of educational research and development, training, extension, educational program, restructuring of school curriculum and textbooks. सो उनका क्या काम था कि वो टेक्स्ट बुक को रिन्यू करेंगे, देन ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को भी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स रखेंगे. It has played a central role in designing school curricula and textbook with the cooperation of the Central Board of Secondary Education (CBSE). It provide guidance and cooperation in the area of primary and secondary education to the state government. It has involved in designing workbook and handbooks for teachers, in teacher training, in developing teaching learning technique and conducting talent search examination at the national level. So उनका रोल क्या था कि वो टीचर्स को गाइड करेंगे, वर्कबुक्स और हैंडबुक्स जो भी रहेगा उनको कैसे डिज़ाइन करना है, मीन्स उसका फ्रंट पेज वो सब उनके हैंड में था, NCERT के हैंड में था. SCERTs were established in all states on the lines of NCERT. SCERT भी एस्टैब्लिश किया गया था बट वो सेम NCERT के लाइन में ही था. The Maharashtra State Council of Educational Research and Training was established in Pune in 1984. एंड महाराष्ट्र का स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था? पुणे में इन 1984. दिस इंस्टीट्यूट परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन सर्विस, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ट्रेनिंग इन द एरियाज ऑफ सिलाइब एंड evaluation, vocation, guidance for students after standard 10th and 12th exam and other educational function. This institute is known as the academic authority. It bring out a periodical called जीवन शिक्षा. So इसमें का भी सिस्टम सेम था एज जैसा NCERT का था. एंड इस जो इस इंस्टीट्यूट को क्या बोला गया था? एकेडमिक अथॉरिटी. एंड इट ब्रिंग आउट अ पीरियडिकल कॉल्ड जीवन शिक्षा.